किस ज़रिए पहुंचाए जाएं उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहुंचाने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि आज की सरकार के अंदर, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अंदर इसको प्राथमिकता दी जाती है और आपका अच्छा सुझाव है, इसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, विषय मैंने आपको बता दिया, क्या सवाल? इसी से संबंध है, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति पे आक्रमण हो रहा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पर एक आक्रमण अभी हो रहा है, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से। सवाल कुछ और है। नहीं, वही है विषय नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ये युवक और युवती के ऊपर एक सांस्कृतिक सवाल है, एनक्रोचमेंट ऑफ द बर्थप्लेस ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम इसमें हमारे माता पिता के बारे में गलत कहा जा रहा है। नहीं जाएगा, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आता है, नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 95, बैठ जाए आप, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। प्लीज टेक योर सीट। क्वेश्चन नंबर 95, माननीय श्री राजीव शुक्ल, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय सुजीत कुमार जी। Chairman sir, since the 1950s, China has been illegally squatting on 36,000 square kilometers of our land in Aksai Chin. Largely sir, because of the incompetence and ineptitude handling of the government of the day and the then Prime Minister. Sir, but because Aksai Chin is an integral part of India, we show it now in maps. And Bangladesh also has been showing both Aksai Chin and Arunachal in its map since 1971. But recently, sir, Chinese government has asked Bangladesh not to show Aksai Chin and Arunachal in its map. So, sir, is the ministry going to do something about it? And this has happened after the change of government in Bangladesh. So, sir, we should intervene and tell Bangladesh government in no uncertain terms that they cannot do so. Will the ministry elaborate? Thank you. Maanनीय मंत्री जी। Thank you, sir. So, the honorable members raised a very old issue. So, with the recent change in the political dispensation in Bangladesh, we are aware of we are taking full cognizance and we are keeping full watch on the developments there. And we take all possible measures to safeguard our security and national integrity and our national borders. So, regarding the matter which the honorable members raised, so this is a matter which is not really very relevant to the question that was asked. So the question deals with the growing influence of China in our neighboring countries and what we are doing to counteract it. So this is a particular matter related to the Home Ministry, related to the Defense Ministry and the Home Ministry. So I would seek a protection regarding this question. And so I would assure the honorable member that any further details that he wants can be required from the Thank you, Honorable Minister. Honorable Minister has committed, he will give you the Mani Sri Milind Deora ji. Sir, thank you, sir. Thank you for indulging me and giving me the time. This time my question is more specific relating to the topic. On the topic. So the question is about China's influence on India's friendly countries. One issue we should keep in mind, my young friends who are MOSs in this ministry, is that after Donald Trump became president of the US, there is a move to shut down an organization called USAID, which provides assistance to many countries, especially in the global south. With the collapse of USAID's funds to the global south, especially Southeast Asia and other regions, where India enjoys very good relations, before anyone else fills up that vacuum, it would be a good idea if the government increases its developmental assistance from India to ensure that no hostile country towards India fills up that vacuum. Thank you. So, regarding our neighborhood countries, we have established a very comprehensive and well-oiled mechanisms for bilateral engagements with all our partner countries. And sir, our foreign policy is also multi-dimensional, omnidirectional approach under the Honorable Prime Minister's guidance of following our ancient custom of Vasudhaiva Kutumbakam. So we have, our priority remains that providing of development assistance and capacity building as per the needs of the aspirations of neighbors remains the highlight of our policy of neighborhood first. So under BIMSTEC, we have hosted disaster management exercises, centers for weather, climate and energy, and also provided a number of capacity building supports. So we continue to support our neighbors in their development needs
and capacity building and continue to bolster our trade and economic ties. And regardless of the change in the situation in the world, we will continue to maintain our relations, and we continue to accord the highest priority to our relations with our neighbors. Thank you. Third supplementary, Dr. M. Thambidurai. Just I want to know from the Honorable Minister, through you, sir, China is not only encroaching the Indian economy for marketing their products. And also, sir, I want to know from the Honorable Minister, the relationship which we are having, whether we are having good relations, regard Sri Lanka is the one of the issue, neighboring country. Now the new government has come over in Sri Lanka. The Sri Lanka president came and met our Prime Minister also here and went to China also. When in these circumstances, there is already we are facing a lot of problem, Kachitub issue and fishermen issue, suffering that. Whether China is going to go on influencing Sri Lanka, then what are the actions now the central government is taking to protect our fishermen and our Indian interest when Sri Lanka is making any problem for that? Because the relationship between China and Sri Lanka is going very high. It is a threatening to Indian thing for our Tamil people also. What is the Honorable Minister, they are going to take? Just want to. So I'd like to reiterate that India's relationships with our neighboring countries are based on historical ties, culture exchanges, people-to-people contact, and old and ancient trade routes. Sir, regardless of what the other country in the world is doing, sir, we continue to accord highest priority to our relationship with our neighbors, and we continue to proceed on our development assistance and any other assistance that our neighbors require, including security assistance. Question hour over. Sir, Okay, complete. Sir, Briefly. he raised a sensitive issue regarding the Sri Lankan fishermen, sir. So I would beg to remind the honourable member that this question is already Briefly, listed. please, conclude. It is already listed in the House. Question hour over. Honorable members, I am seized of an undated notice for motion received on 13 December 2024, bearing 55 purported signatures of the members of the Rajya Sabha seeking removal from office of Justice Shekhar Yadav of Allahabad High Court under Article 124(4) of the Constitution. The jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman Rajya Sabha and in an eventuality with the Parliament and Honorable President. Taking note of public domain information and inputs available, it is expedient that the Secretary General Rajya Sabha shares this for information with the Secretary General Supreme Court of India. Further discussion on the Union Budget 2025-26. On the 11th February 2025, Srimati Darshana Singh had not concluded her speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Srimati Darshana Singh to continue her speech. Srimati Darshana Singh. थैंक यू सर. आपने मुझे इस वर्ष के बजट 2025 पर पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ. महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यह बजट सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है, जो 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. यह बजट गरीब कल्याण, युवा, किसान एवं महिला के विकास को समर्पित बजट है. महोदय, किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत ज़रूरी है. महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए
क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ महोदय, कि 2014 से पहले मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई ज़रूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं बनाई। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मध्य वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यह बजट युवाओं कंक्लूड करिए, आपका समय बस कंक्लूड कर रही हूँ सर। यह बजट युवाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैं महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेल आम जन को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस क्रम में इस बजट में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई और चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बस मैं अपनी एक बात और कहते हुए कंक्लूड कर रही हूँ महोदय। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि जिनके नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के विजन को मजबूती देने वाला बजट पेश हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं।
पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि। जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका, तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी, तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था, तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना सेठ? सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना सेठ दोस्त? सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाले सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि? किसकी संतुष्टि? कदम कदम पर टैक्स देकर लुटने वाली जनता की, या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्ना सेठों का खजाना भरने वाली सरकार की? किसकी संतुष्टि? सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर? कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके। जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखाना को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी
ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी, आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? यह मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ है या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का EMI भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है।
सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल फूल रहा है, नोएडा का नफरत उद्योग। सभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45% मेडिकल फैकल्टी की सीट खाली हो, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर, कम से कम इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। पहले 7500 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले जो एम्स में 2161 पद खाली पड़े हैं उनको तो भर दीजिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। सभापति महोदय, फिर झूठ आया है, मैं उसे मिथ्या कर दे रहा हूं। शायरी में बार बार आ जाता है, क्या करूं महोदय। काश ये बजट, सभापति महोदय, वो एक शब्द मैं मिथ्या कर दे रहा हूं सर, वो एक शब्द को हटा दीजिए। ध्यान रखें, ऐसे जो भी शब्द होंगे आपके भाषण में सभापति महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता, जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, यह निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, यह अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल करिए। नौजवानों के लिए रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। यही मैं आपसे अपील कर रहा हूं। धन्यवाद सर, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए
बाद शुक्रिया। माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ, माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ। मैं उधर आ जाऊं। माननीय सभापति जी, 10 मिनट। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बहुत ऊंचे विचार और ऊंची सोच के माध्यम से राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित है। भारत की विकास यात्रा और अमृतकाल को अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि इस देश में बहुत लंबे समय से धारा 370 भी चल रही थी और उससे लाखों की तादाद में लोग जूझ रहे थे। इधर श्री राम जन्मभूमि जो पिछले 1000 साल की समस्या थी, उसका समाधान होने में बहुत विलंब हुआ और उसमें 500 साल तक इस देश के ऋषि मुनियों ने संघर्ष किया और वो संघर्ष का काल पूर्ण हुआ और इस देश में निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे रोड बने, कई पुल बने और उसमें अयोध्या तक जाने के लिए लाखों लोगों को खूब सारी सुविधा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने लगभग 4,41,00,000 रुपए की राशि का भुगतान भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना सरकार ने बनाई। राष्ट्रपति जी ने निरंतर इस देश की हित के लिए, चिंतन के लिए अपना उद्बोधन दे करके पूरे राष्ट्र के लोगों को अभिभूत किया है। बजट में माननीय राष्ट्रपति जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी दृष्टिगत रखते हुए उसकी विकास की ओर ध्यान दिया है। अंत्योदय योजना की भावनाओं को उसके प्रति सरकार संकल्पित रही है। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। एक तरफ पिछले अनेकों वर्षों से हम ये बात सुनते आ रहे थे कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन जब से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई तो सबसे पहले गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प लिया गया। वो अभूतपूर्व व्यवस्थाएं स्थायी रूप से मिलने, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित रहा है और समाज उससे लाभान्वित भी हुआ है। इन्हीं मूलभूत योजनाओं की वजह से देश में 70 वर्षों के बाद प्रत्येक नागरिक को ऐसा लग रहा है कि चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे जूते पर पॉलिश करने वाला हो, चाहे भिक्षावृत्ति करने वाला हो, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मन, वचन, कर्म से सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ चल करके भारत के विकास में हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। देश में नागरिकों को बेहतर व्यवस्था के लाभ के लिए 1,75,000 करोड़ आयुष्मान मंदिर बने हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश का कल्याण होगा क्या, लेकिन आरोग्य मंदिर भी बने हैं जिसमें असाध्य रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई जाएगी, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो। ऐसी व्यवस्थाओं में भी समाज अग्रणी पंक्ति में आए और राष्ट्र का ये जो सरकार है निरंतर उसके लिए संकल्पित है। विपक्ष बोलता रहता है कि मंदिर बनाने से क्या भारत का कल्याण होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत की सरकार चल रही है, भारत में पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। 1,70,000 करोड़
लोग डरावनी ज़िंदगी से मुक्त हुए हैं। कहीं भी बम फटने की सूचना प्राप्त नहीं होती है। कहीं धारा 370 के साथ साथ इस देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं बनी है। आज इस देश में सब लोग बहुत अमन और चैन से जी रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सभी लोगों के जीवन के लिए ध्यान दिया है, लेकिन कुछ लोग उनकी राजनीतिक से प्रेरित बजट बता रहे हैं, जबकि बजट में सभी बातें ऑथेंटिक है, बकवास नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ दिया गया है और उधर माननीय मोदी जी का ऊंचा विचार, उनकी ऊंची सोच, उनका ऊंचा चिंतन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी प्रकार हम सामाजिक समरसता के रूप में देखने को मिल रहा है और जाति पाति पंथ संप्रदाय को एक तरफ रखकर इस देश में सब लोगों के लिए काम हो रहा है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए वह केवल 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। श्री राम मंदिर की समस्या जो कि बहुत पुरानी थी उसका भी समाधान हुआ है और हमको ऐसा भी लगने लगा कि इस देश की एक बड़ी पंचायत जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें अनेकों ऋषियों का नाम लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों के माथे पे तिलक लगना देखने को मिला है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने को देखने को मिला है और इस देश में सब लोग सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जीने का अधिकार जिस तरीके से लोगों को मिला है, मैं समझता हूँ कि घर घर सनातन की चर्चा हो रही है। माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान इस देश के गरीब से लेकर अमीर तक बना हुआ है। इन्हीं भावनाओं को बिल्कुल पवित्र है। उनका भाव एक जैसे सबरी माता का भाव था जो राम जी को निरंतर 14 वर्ष तक निहारती रही और सबरी के समान ही इस देश की राष्ट्रपति जी सबरी जैसी जिसका भाव त्रिलोकी के नाथ राम जी के प्रति था, ठीक उसी प्रकार से उनका भाव इस देश की तमाम जनताओं की ओर बना हुआ है। मैं इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको पूर्ण रूप से धन्यवाद के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, प्लीज आपस में बात नहीं, प्लीज। हाँ, डॉक्टर सस्मित पात्रा। Grateful. Honorable Deputy Chairman, sir, I stand here today not just as a representative of my state, Odisha, but as the voice of a state that has been abandoned by this union budget. This is not just neglect, but this is an affront to 4.5 crore people of Odisha. Let me remind this House, the Odisha BJP in its 2014 election manifesto promised special category status for Odisha. 11 years later, Honorable Deputy Chairman, sir, where is that promise? Where is that status? Where is the justice? The Biju Janata Dal and our leader, Shri Naveen Patnaik ji, have been constantly demanding special category state status for Odisha over the past 2 decades. The 4.5 crore people of Odisha are hopeful that the state will be provided special category status. It hasn't happened in this budget. Odisha is the economic backbone of this nation. Our coal, our iron ore, our minerals fuel India's progress. Yet when Odisha asks for its fair share, this government turns its back. We suffer cyclones and natural disasters year after year after year, yet Delhi refuses to recognize our pain. This budget showers favors on some, ignores others, and treats Odisha like an afterthought. Is Odisha only good enough to extract mines, minerals, coal, and wealth, but not worthy of growth and support for special category state status? I will conclude. My time is out. In concluding, Odisha's resilience must be rewarded, not overlooked.
if we expect our state to rebuild after every catastrophe while continuing to fuel India's growth, then we must ensure it receives the support. This budget must not turn its back on Odisha. This is the decisive moment. Please provide special category status to Odisha through this budget. Bande Utkal Janani. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Sasmit ji. माननीय श्री A.D. सिंह जी, माननीय श्री A.D. सिंह, not present. माननीय श्रीमती P.T. ऊषा, not present. माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, not present. माननीय श्री अब्दुल वहाब, not present. श्रीमती संगीता यादव जी, 5 मिनट. कितना मिनट है माननीय? 5 मिनट. अरे कट गया टाइम। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे भारत को विकसित बनाने वाले बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। माननीय उपसभापति जी, चूँकि मैं यूपी से आती हूं तो महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सरकार को बधाई देती हूं और उस वहां पर हुई अपनी घटना पर अपना शोक संवेदना भी व्यक्त करती हूं। माननीय उपसभापति जी, पहले जैसे 2014 के पहले अगर किसी को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने होते तो हम लोग के पास फ़ोन आता था। हम मैं अपनी बात भी कर रही हूँ तो जाने से भी डर लगता था और अयोध्या में तो कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन आज जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं अयोध्या भी हो लूँ और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर लूँ। ये अगर हो पाया है तो माननीय मोदी जी की वजह से हो पाया है, जिसके अभी मैं सुन भी रही थी अपने एक साथी को, उन्होंने सनातन धर्म पर जो बात कही वो पूरी चरितार्थ हो रही है। माननीय उपसभापति जी, मैं अभी माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा सुन रही थी और अभी बजट पे भी विपक्ष के भाई बहनों को अपने सुन रही थी, तो उन्होंने बार बार एक बात कही कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, लगातार इस बात की चर्चा थी। तो मैं अपनी इस बात पे तथ्यों के माध्यम से युवा बजट पे बात करना चाहूँगी। मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं कि ये युवा समर्पित बजट है और ये मैं फैक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसका श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को ही जाता है। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रमों ने लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नए रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया है। आज देश में 1.3 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 115 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल है। इस बजट में भी स्टार्टअप इंडिया के लिए जो लोन की सीमा थी वो 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ तक कर दी गई है और गारंटी की फीस भी कम की गई है। युवा पीढ़ी के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप योजना तैयार की गई है। डिजिटल क्रांति के इस युग में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से 8 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ है। निर्माण के क्षेत्र में भी 20 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ है, जो बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के कारण संभव हुआ है। MSME सेक्टर के लिए 25,000 करोड़ का जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड तैयार किया गया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 6 करोड़ मजदूरों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है। स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1500 स्कूलों में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैब्स की स्थापना की गई है। माननीय उपसभापति जी, भारत में पहली बार 50,000 विदेशी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है। यह हमारे देश की उच्च शिक्षा तंत्र की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात माननीय उपसभापति जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स में, तो पहले हमारे पास एक बायोडाटा आता था कि मैडम थोड़ा नौकरी के लिए प्रयास किए, ये करिए, बहुत आते थे। 2 ही काम होते थे, बहुत लोग एडमिशन के लिए प्रयास करते थे या नौकरी के लिए। लेकिन आजकल का जो बदलाव मैंने देखा है, कोई भी यूथ आ रहा है तो ये नहीं कहता कि नौकरी चाहिए, मैडम कुछ काम करना चाहते हैं, इसमें कुछ मदद हो सकती है आपकी। तो ये जो सोच का जो बदलाव आया है, ये 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रयासों से आया हुआ है और माननीय उपसभापति, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं अपने अन्नदाता के बारे में भी कुछ बात करना चाहूँगी कि किसानों के लिए भाई हमारे अन्नदाता हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि कभी कोई बैठक हुई, कई पार्टी की भी कोई संगठन की बैठक हुई, हम सांसद की हुई, माननीय मंत्री जी लोगों की हुई, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारे किसान भाइयों की कभी चर्चा ना हुई हो। और इस बजट में भी मैं कुछ अपने फैक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। आकांक्षी जिलों के अभूतपूर्व सफलता के बाद प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना 100 जिलों में शुरू की गई है। दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है।
कपास उत्पादन के लिए 5 वर्ष के लिए नया मिशन का आयोजन किया गया है। आज हमारी सरकार तूर, उड़द, मसूर पर मिशन के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रही है। आधुनिक कृषि में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन हेतु 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। यह निवेश किसानों को उन्नत उपकरणों, सटीक कृषि तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होगा। माननीय उपसभापति जी, इसके अलावा सरकार किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है। और चूंकि माननीय उपसभापति जी मैं यूपी से आती हूं, तो थोड़ा सा यूपी के लिए इस बजट में क्या है उस पर बात करना चाहूँगी। चूँकि वह डबल इंजन की सरकार चल रही है और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आज लगातार यूपी की चर्चा हर जगह है। उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कंक्लूड करिए संगीता जी। यही तो संकट है, जैसे मैं खड़ी कंक्लूड होती करिए, समय मेरे हाथ में नहीं है अभी बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सबको असर। बस 1 मिनट का टाइम लेती हूँ मैं। उड़ान योजना के तहत यूपी के 24 छोटे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। AI शिक्षा के लिए यूपी में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित होगा। महाकुंभ, बस 1-2 लाइन कह के बंद करी। महाकुंभ, बौद्ध सर्किट, राम मंदिर के लिए भी इसमें बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है। और ये 2 लाइनें मैं अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि एक जो मोदी जी का और हम सबका सपना है कि भारत 2047 तक विकसित देश बने, उसके लिए मैं 2 लाइनें अब सबसे कहूँगी। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगा रहे हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय मुजीबुल्लाह खान, 3 मिनट। धन्यवाद सर। मैं बजट के ऊपर बोलना चाहता हूं, लेकिन हमारे उड़ीसा से जो मेरे साथी सांसद बहुत कुछ उड़ीसा के बारे में बोल